दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे नंबर्स 27 चैप्टर 28 चैप्टर, गिनती की पुस्तक 27 अध्याय 28 अध्याय। धन्यवाद हो आबा फादर गॉड, धन्यवाद हो परमेश्वर। आबा फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और आपके कंट्रोल में सामर्थ है खुदा। न्याय के समय परमेश्वर हमको और कहीं नहीं जाना है, आप ही के सामने आना है। इसके लिए हम विनती करते हैं, आपकी सच्चाई का हमें सामना कराइए। आप झूठ और धोखा पर्दाफाश कीजिए। जो भी पिता परमेश्वर हमारे शरीर, प्राण, आत्मा, हमारे घर परिवार के अंदर, हमारे इर्द गिर्द में झूठ कहीं पर भी है, खुदा परमेश्वर उसको खोल दीजिए और हमको मालूम पड़ने दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हम पिता झूठ से आजाद हो जाए, भ्रम में से आजाद हो जाए और परमेश्वर तेरा सच्चाई हम स्वीकार सके। और तेरे सच्चाई के सामने पिता हम परमेश्वर तेरे उजियाले के सामने खुदा हम परमेश्वर अपने आप को पिता परमेश्वर तेरे योग्य बना सके। जैसा तू चाहता है वैसा हम हो सके। आबा फादर गॉड, यीशु मसीह का आगमन निकट है और इसके लिए खुदा परमेश्वर हम इस समय जो वचन पढ़ रहे हैं उसके अंदर से हम सच्चाई का सामना करने के लिए मांगते हैं। हमारी विनती सुन, नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। नंबर्स 27 चैप्टर। The daughters of Zelophehad sue for an inheritance. The law of inheritance, Moses sued for a successor. Joshua is appointed. First verse say, Then came the daughters of Zelophehad, the son of Hepher, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, of the families of Manasseh, the son of Joseph. And these are the names of his daughters, Mahlan, Noah, and Hoglah, and Milcah, and Tirjah. And they stood before Moses and before Eleazar the priest and before the princes and all the congregation by the door in the tabernacle of the congregation, saying, Our father died in the wilderness, and he was not in the company of them that gathered themselves together against the Lord in the company of Korah, but died in his own sin, and had no sons. Why should the name of our father be done away from among his family? Because he hath no son. Give unto us therefore a possession among the brethren of our father. And Moses brought their cause before the Lord. And the Lord spake unto Moses, saying, The daughters of Zelophehad speak right. Thou shalt surely give them a possession of an inheritance among their father's brethren, and thou shalt cause the inheritance of their father to pass unto them. And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, If a man die and have no son, then ye shall cause his inheritance to pass unto his daughter. And if he have no daughter, then ye shall give his inheritance unto his brethren. And if he have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his father's brethren. And if his father have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his kinsman that is next to him, to his family, and he shall possess it, and it shall be unto the children of Israel a statute of judgment, as the Lord commanded Moses. And the Lord said unto Moses, Get thee up into this Mount Abarim, and see the land which I have given unto the children of Israel. And when thou hast seen it, thou also shalt be gathered unto thy people, as Aaron
thy brother was gathered. For ye rebelled against my commandment in the desert of Zin, in the strife of the congregation, to sanctify me at the water before their eyes, that is the water of Meribah in Kadesh, in the wilderness of Zin. And Moses spake unto the Lord, saying, Let the Lord, the God of the spirits of all flesh, set a man over the congregation, which may go out before them, and which may go in before them, and which may lead them out, and which may bring them in, that the congregation of the Lord be not as a sheep which have no shepherd. And the Lord shall unto Moses, and the Lord said unto Moses, Take thee Joshua the son of Nun, a man in whom is the Spirit, and lay thine hand upon him, and set him before Eleazar the priest, and before all the congregation, and give him a charge in their sight. And thou shalt put some of thine honor upon him, that all the congregation of the children of Israel may be obedient. And he shall stand before Eleazar the priest, who shall ask counsel for him after the judgment of Urim before the Lord at his sword. Shall they go out, and at his word they shall come in, both he and all the children of Israel with him, even all the congregation. And Moses did as the Lord commanded him. And he took Joshua and set him before Eleazar the priest, and before all the congregation. And he laid his hands upon him, and gave him a charge, as the Lord commanded by the hand of Moses. Chapter 28. Offering to be observed. The continual burnt offering, the offering on the Sabbath, the new moons, the Passover, etc. First verse. And the Lord spake unto Moses, saying, Command the children of Israel, and say unto them, My offering and my bread for my sacrifice made by fire, for a sweet savour unto me, shall ye observe to offer unto me in their due season. And thou shalt say unto them, This is the offering made by fire, which ye shall offer unto the Lord, 2 lambs of the first year, without spot, day by day, for a continual burnt offering. The one lamb shalt thou offer in the morning, and the other lamb shalt thou offer at even. And a 10th part of an ephah of flour for a meat offering, mingled with the 4th part of an hin of beaten oil. It is a continual burnt offering, which was ordained in Mount Sinai for a sweet savour, a sacrifice made by fire unto the Lord. And the drink offering thereof shall be the 4th part of an hin for the one lamb. In the holy place shalt thou cause the strong wine to be poured into the Lord for a drink offering, and the other lamb shalt thou offer at even, as the meat offering of the morning. And as the drink offering thereof thou shalt offer it, a sacrifice made by fire of a sweet savour unto the Lord. And on the Sabbath day 2 lambs of the first year without spot, and 2/10 deals of flour for a meat offering, mingled with oil, and the drink offering thereof. This is the burnt offering of every Sabbath, beside the continual burnt offering, and his drink offering. And in the beginnings of your months ye shall offer a burnt offering unto the Lord, 2 young bullocks and 1 ram, 7 lambs of the first year without spot, and 3/10 deals of flour for a meat offering, mingled with oil, for 1 bullock,
and 2/10 deals of flour for a meat offering mingled with oil for 1 ram, and a several tenth deal of flour mingled with oil for a meat offering unto 1 lamb, for a burnt offering of a sweet savour, a sacrifice made by fire unto the Lord. And their drink offerings shall be half an hin of wine unto a bullock, and the third part of an hin unto a ram, and a fourth part of an hin unto a lamb. This is the burnt offering of every month throughout the months of the year, and 1 kid of the goats for a sin offering unto the Lord shall be offered beside the continual burnt offering and his drink offering. And in the 14th day of the first month is the Passover of the Lord, and in the 15th day of this month is the feast. 7 days shall unleavened bread be eaten. In the first day shall be an holy convocation. Ye shall do no manner of servile work therein, but ye shall offer a sacrifice made by fire for a burnt offering unto the Lord, 2 young bullocks, and 1 ram, and 7 lambs of the first year. They shall be unto you without blemish. And their meat offering shall be of a flour mingled with oil. 3/10 deals shall ye offer for a bullock, and 2/10 deals for a ram. A several tenth deal shalt thou offer for every lamb throughout the 7 lambs, and 1 goat for a sin offering to make an atonement for you. Ye shall offer this beside the burnt offering in the morning, which is for a continual burnt offering. After this manner ye shall offer daily throughout the 7 days the meat of the sacrifice made by fire of a sweet savour unto the Lord. It shall be offered beside the continual burnt offering and his drink offering. And on the 7th day ye shall have an holy convocation. Ye shall do no servile work. Also in the day of the first fruits, when ye bring a new meat offering unto the Lord, offer your works be out. Ye shall have an holy convocation. Ye shall do no servile work, but ye shall offer the burnt offering for a sweet savour unto the Lord, 2 young bullocks, 1 ram, 7 lambs of the first year, and their meat offering of flour mingled with oil. 3/10 deals unto 1 bullock, 2/10 deals unto 1 ram, a several tenth deal unto 1 lamb throughout the 7 lambs, and 1 kid of the goats to make an atonement for you. Ye shall offer them beside the continual burnt offering and his meat offering. They shall be up to you without a blemish, and their drink offerings. थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। रिबांति खब्बा हसी खिल्लर बहा अखसे हिकम्बहु शराखा सिरालर बहु को सियांदुरा रिदाने में कैसे हिकब्बहुल्ला रहसा। गिनती की पुस्तक 27 अध्याय। सलोफाद की बेटियां। तब यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में से सलोफाद, जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनश्शे के पुत्र मकीर का परपोता था, उसकी बेटियां, जिनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा है, वे पास आई और वे मूसा और एलियाजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में का न था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र न था, तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए।
हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि नीज भाग करके दे। उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती है, इसलिए तो उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि नीज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके साथ उनके हाथ सौंप दे। और इस्राएलियों से यह कहे, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी न हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी न हो तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना, और यदि उसके चाचा भी न हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उनको उसका भाग देना कि वह उसका अधिकारी हो। इस्राएलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। मूसा के स्थान पर यहोशू। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के इस देश को देख ले जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरिया नामक सोता है जो सीन नामक जंगल के कादेश में है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तो नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे, और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे, और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा के उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इस्राएलियों को सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा को इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। नियत समयों के बलिदान 28 अध्याय पहले वचन से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा सुना, मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना, और तू उनसे कहे, जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये है, अर्थात नित्य होम बलि के लिए 1 वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करना, एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधूली के समय चढ़ाना, और भेड़ के बच्चे के पीछे 1/4 हीन कुट के निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के 10वें अंश मैदे का अन्न बलि चढ़ाना। यह नित्य होम बलि है जो सिनै पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगंध वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया, और उसका अर्घ प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग 1/4 हीन हो। मदिरा का यह अर्घ यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना, और दूसरे बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, अन्न बलि और अर्घ समेत भोर के होम बलि के समान उसे यहोवा का सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। विश्राम दिन के बलिदान 9 वचन से आगे। फिर विश्राम दिन को 2 निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे और अन्न बलि के लिए
तेल से सना हुआ एपा का 2/10 अंश मैदा और समेत अर्घ समेत चढ़ाना नित्य होम बलि, और उसके अर्घ के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन को यही दिन का यही होम बलि ठहरा है, प्रति माह के बलिदान। फिर अपने महीनों के आरंभ में प्रति माह यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और एक वर्ष के निर्दोष भेड़ के 7 नर बच्चे, और बछड़े पीछे तेल से सना हुआ एपा का 3/10 अंश मैदा, और उस एक मेढ़े के साथ तेल से सना हुआ एपा का 2/10 अंश मैदा, और प्रत्येक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा, उन सबों को अन्न बलि करके चढ़ाना। वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य ठहरेगा। और उनके साथ ये अर्घ हो, अर्थात बछड़े पीछे आधा, हीन मेढ़े के साथ तिहाई, और भेड़ के बच्चे पीछे चौथाई हीन दाख मधु दिया जाए। वर्ष के सब महीनों में से प्रत्येक महीने का यही होम बलि ठहरे, और एक बकरा पाप बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया जाए। यह नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फसह के पर्व के बलिदान। फिर पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को पर्व लगा करे। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाई जाए। पहले दिन पवित्र सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई काम न किया जाए। उसमें तुम यहोवा के लिए एक हव्य अर्थात होम बलि चढ़ाना। अतः 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और एक वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे हो, ये सब निर्दोष हो, और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो। बछड़े पीछे एपा का 3/10 अंश और मेढ़े के साथ एपा का 2/10 अंश मैदा हो, और 7 भेड़ के बच्चों में से प्रति बच्चे पीछे एपा का 10वां अंश चढ़ाना, और एक बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। भोर का होम बलि जो नित्य होम बलि ठहरा है, उसके अलावा इनको चढ़ाना। इस रीति से तुम उन 7 दिनों में भी हव्य का भोजन चढ़ाना, जो यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हो। यह नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। और 7वें दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। कटनी के पर्व के बलिदान। फिर पहली उपज के दिन में, जब तुम अपने कटनी के पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो, और परिश्रम का कोई काम न करना। और एक होम बलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और एक वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे, और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े पीछे एपा का 3/10 अंश और मेढ़े के संग एपा का 2/10 अंश, और 7 भेड़ों के बच्चों में से एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और एक बकरा भी चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। ये सब निर्दोष हो, और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा इसको भी चढ़ाना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इन वचनों में पिता सामर्थ्य है, और ये वचन पानी की तरह हमें धो देता है। परमेश्वर पिता, हम तेरे वचन के कारण हमारा आत्मा, प्राण, शरीर शुद्ध हो चुका है, पवित्र हो चुका है। तेरी धार्मिकता और तेरे रहस्य और भेद हम में है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें फिट एंड फिक्स करने के लिए धन्यवाद करते हैं। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लाने के लिए धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, हमारे धन्यवाद को स्वीकार कर और ग्रहण कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।
2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 26 चैप्टर 12 वर्स से 23 वर्स, सैम्स 69 चैप्टर 70 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 12 वचन से 23 वचन। भजन संहिता 69 और 70 अध्याय। हम अकेले में बैठकर पर्सनल टाइम में, व्यक्तिगत समय में इसे पढ़ेंगे। जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर से परमेश्वर का आत्मा वचनों के आधार से लेकर हमें सुधार करने के लिए, हमें उन्नति करने के लिए, कोई भी वचन के आधार से हमें कुछ बातें सिखाएगा। उसे हमने सीखना है और उसको हमने परमेश्वर के जो काम है उसके करने के लिए उसके समानता में ढल जाना है। हम अकेले में जब पढ़ते हैं तो हम वैसा ढल सकते हैं, वचन को ग्रहण कर सकते हैं, सुधार को ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं सभीयों ने अकेले में पर्सनल व्यक्तिगत टाइम में इसे पढ़ना है। आप अपने मर्जी से, जैसा परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करे, वैसे आप पढ़ सकते हैं। निश्चित यही करना है, परमेश्वर के आत्मा ने हमको सिखाना है। निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। रिबांति खब्बा शरखा सिराल रुबह को सियांदुरा। प्रभु यीशु मसीह हम इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर और ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। हम मांगते हैं खुदा परमेश्वर, झूठ की ताकत को पिता हमारे सामने पिता पर्दाफाश कर। हर धोखा, हर एक परमेश्वर पिता जो तेरे विरोध की बातें हैं, जो पिता परमेश्वर हमारे घर परिवार के अंदर छेद है या कमजोरी है या कोई प्रकार से परमेश्वर पिता हमारे कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में पिता परमेश्वर तो बदलाव लाना चाहता है, लेकिन पिता परमेश्वर उस बदलाव को पिता तू हमें दे नहीं पाता है। अब फादर गॉड, क्योंकि पिता परमेश्वर हम तेरी बातों को पिता परमेश्वर समझ नहीं पाते हैं। अब फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं कि तू उन सब बदलाव को लेकर आने का रास्ता बनाएगा। अब फादर गॉड, हम मांगते हैं आपकी मर्जी, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। जो आप चाहते हैं वही हमारे जीवन में हो। हम पिता परमेश्वर आपके अलावा और कहीं और कुछ ना चाहे, केवल और केवल आप बढ़ते जाए और हम घटते जाए। अब फादर गॉड, वी थैंक यू। आपने हमें जीत का झंडा लहराया, आपने हमें जयवंत बनाया, आपने हमको मोर देन कॉन्करर बनाया। मृत्यु का डंका हमारे ऊपर से तोड़ दिया। थैंक यू फादर गॉड। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स करने के लिए धन्यवाद। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फादर। थैंक यू आबा, आपके विश्वास योग्यता के लिए। थैंक यू आपके एंजल्स के लिए। धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए। अब फादर गॉड, जहाँ पर पिता परमेश्वर आपका पिता परमेश्वर लाठी आता है तब पिता आवाज नहीं आती है। अब फादर गॉड, आपकी लाठी निश्चित है खुदा परमेश्वर, भले ही उसका आवाज ना आए लेकिन निश्चित है पिता। थैंक यू फादर गॉड कि हम आपकी विश्वास योग्यता के कारण वो समय पार कर चुके हैं जो शत्रु हमें अटकाना चाहता था। अब फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं, जब आपकी लाठी उतरेगी तो उसका आवाज नहीं आएगा लेकिन उसके काम दिखाई देंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। नासरी यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं वो लाठी तेरे समय और परमेश्वर जल्दी से आए, ताकि पिता परमेश्वर अधर्म और अशुद्ध कामों को हम रोक सके और तेरे धार्मिकता को ऊंचा कर सके। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।